اوپر والے سر سر ان کی سر یہ چار ان کو سر پھر ایکسیس کرنے کا ہمارے پاس یہ طریقہ تھا سر، اس کو ہم نے بنگھڑ سے کچھ پوائنٹس کو ایکسیس کیا ہے، اور سر دوپہر کے کچھ پوائنٹ سر ہم نے ججال ایک ایریا ہے وہاں ہم نے دوپہر کی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ وہ تک ریسٹور ہو جائے سر اس پہ سر ابھی سر تو اس کو سر ہم نے فارورڈ پوزیشن سر ایک اور ہمارا ایریا ہے سر ڈبر ججال کا ایریا ہے سر، وہاں ہم نے فارورڈ موو کرا دیا ود ان 1 day وی ہیڈ اے فارورڈ پوزیشن، وہاں پہ ہم نے فوڈ آئٹمز نان فوڈ آئٹمز پہنچے اور بہت میسو رسپانس ہے وہاں پہ۔ ان لوگ سر جو اس کے یہ والے قریب علاقے یہاں سے پیدل آ رہے ہیں سفر، ان سب کے باوجود سر ہمارے پاس یہ ریڈ وہ پوائنٹس ہیں جو ابھی تک جن میں کوئی روڈ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، اور سر ان کو اسٹیبلش کروانا ہے۔ یہیں پر آپ نے بٹن میں لگوائے سر یہاں تو لمیٹڈ ہے ٹینٹس، ہم نے یہاں سے بھی ڈسٹریبیوشن کی ہے، لیکن ہم نے سر ہر جگہ پہ سینٹرز لگوائے ہیں، رنولیا میں بھی فارورڈ جو پوزیشن ہیں سر، دوپہر میں بھی سر، دوپہر کے اندر KKH کے قریب بھی، لیکن سر اب ایک دو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں فیڈرل اور اس کی جو کولیبریشن سے ہوں گے، ایک سر یہ کہ دوپہر اور رنولیا سر جیسی KKH سے آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں ایک پوری بازار ہوتا تھا پورا، وچ ہیز بین واشڈ آؤٹ، وہ بھی 17 میگا واٹ کا پروونشل ایک وہ تھا پاور ہاؤس، وہ بھی سر پرابلی بہت زیادہ ڈیمیج ہے۔ تو سر جی سر KKH ٹو دوپہر رنولیا ایک پوائنٹ ہے سر وہ راؤنڈ اباؤٹ 500 میٹرز ہے، جس کے لیے سر وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جب انٹر دا ویلی فرام KKH انٹو دوپہر تو وہ بالکل کٹ چکا ہے سر، تو وہ بلاسٹنگ اور اس پیدل جانے کے لیے سر ہم نے راستہ چاہا، اور وہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے CNW کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں وہ انٹروین کرے، تو 300 میٹر سر اگر ہو جاتا ہے تو یہ دوبیر اور رنولیا یہ کنیکٹ ہو جائے گا، باقی ہم سر بریف ایک پڑا ہوتی ہے۔ اچھا سر ایک اور ایشو جو ہمارا ہے وہ بھی فیڈرل اور پروونشل، ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے اور سر یہاں پہ ہوئی ہے 18 ان ٹوٹل سر 18 جی سر ہوئی ہے نا، وہ پوائنٹ دریا کے اندر سے بہ گئے اور پوائنٹ بن گیا سر۔ ایک اور سر بڑا ایشو جو پروونشل اور فیڈرل کا اس سے ہوگا مشاورت سے، یہاں پہ ایک ڈیم ہے دوپہر میں سر، وہ ڈیم انہوں نے اس دن اس کے جو اپنے ٹاورز تھے بجلی کے کنیکشنز وہ دے بین واشڈ اوے، تو وہ جب تک بحال نہیں ہوگی بجلی اس ڈیم پہ سر تب تک اس کا جو گیٹ ہے وہ بند نہیں ہو سکتا، وہ بند نہیں ہوگا تو نیچے سر کون دیکھا آپ نے؟ جی سر یہ اس پہ ہے سر ایک ایڈیشنل ریکویسٹ ہے سر، وہ فائلر گر چکے ہیں سر 15 نمبر ان لوور کوستان کولے پیلس، تو کولے پیلس کا بھی بجلی بالکل بند، ریکویسٹ ہم نے کی منسٹر پاور از کمنگ ہے ٹو KP، وہ آ رہے ہیں سر، ان کو میں کہہ دوں گا آپ اس میں لکھ دیں مجھے میں سب ریکمنڈیشن دے دوں سر، تو یہ اگر اور زیادہ اور باقی فوڈ آئٹم مل رہی لوگوں سر وہ ریلیف آ بھی رہی ہے اور پہنچائی بھی جا رہی ہے سر۔ ٹھیک، اور کوئی میڈیکل کیمپ بھی لگے؟ اور سر میڈیکل کیمپ جگہ جگہ لگے، اور ہم نے کچھ جگہوں پہ ہیلی ڈراپس کروائی ہیں آرمی کے ساتھ، اس میں سر ہم لوگ پیکیجز انکلوڈ کریں۔ یہاں سر کالرا کا ایک آؤٹ بریک پہلے بھی تھوڑا سا چل رہا تھا، اب اور ایلیویٹ ہو گیا آج بھی 2 بچے آج اور سر ایک اور ایشو سر لاسٹ یہ لکھنے نا میں صاحب، ایک تو FWO سے کرنی بات وہ ریپیئر کرنے کے لیے بہت FWO اینڈ NHA اور واپس آپ منسٹر آف پاور کو کیا، تو سر آپ ان سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، ابھی چلیں سر ٹھیک ہے بھائی سر، یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے، تو میری جو اسلام آباد پوائنٹ پہ میری بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویری ویل آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف لوور کوہستان کے دورے پر پٹن پہنچ گئے ہیں، اور وزیر اعظم کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی جا رہی تھی، اور وزیر اعظم شریف نے جو ہے وہ متاثرین سے اب وہ ملاقات بھی کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اندر چیک بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ لوور کوہستان میں اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف پٹن میں موجود ہیں، وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے، اور جہاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی رقم کی انہوں نے جو ہے وہ تقسیم بھی کریں گے، اور لوور
कोहिस्तान हालिया बारिशों से इस वक्त 18 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। अपडेट करते चलें इस हवाले से आपको, तो अब से कुछ देर कबल जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी कहा और उन्होंने कहा कि सैलाब से नुकसानात के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। कलाम बहरीन का भी उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि कलाम और बहरीन में काफी जो है वो तबाही हुई है, पुलों को नुकसान पहुंचा है और अफवाज पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत जो है वो साथ मिलकर दिन रात मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद है। और उन्होंने कहा कि सब इदारे जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी हमें जो है वो फराहम किए गए हैं, सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो हमेशा जारी रहेगा। फसलें जो है इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो गए हैं। Headline News is brought to you by 10 रुपए में मजबूती के साथ लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला शरीक नहीं हुए। पूरी कौम एक तरफ और दूसरी तरफ शैतानी एजेंडा है। एक पार्टी शैतानी सोच पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक की इमरान खान पर तनकीद, कहा जंगल में आग लगे तो तमाम जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तो पूरा मुल्क ही तबाही का शिकार है। कमर जमान कायरा ने कहा कि आने वाले महीनों में ज़रूरी मसनूआत में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ सैलाब पर भी सियासत कर रही है। तमाम तन नाइंसाफियों के बावजूद हमने कोई शिकायत नहीं की। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सैलाब के नुकसानात पूरा करने में कई साल लगेंगे। गुज़िश्ता 4 साल में मईशत तबाह न होती तो बहाली में कम वक्त लगता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कलाम में खिताब, कहा मुतासरा खानदान को 25-25 हजार जबकि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख फी किस्त दिए जाएंगे। जख्मियों को 3 लाख रुपए फी किस्त देने का ऐलान किया गया है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। वज़ीर आज़म इस वक्त मुतासरीन से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। दरिया में नुकसान हुआ, जब दरिया में उबाल आया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ लोग वहाँ पर सैलाब फंस गए। उनको अल्हम्दुलिल्लाह सब अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स उनको जा रहे हैं और उनको इनखला उनका हो रहा है। तो अब मैं आपके पास आया हूँ और मुझे बताया गया है कि इस लोअर कोहिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान दुबैर में हुआ। दुबैर में ये ठीक बात है जी? दुबैर रानोलिया जी, हाँ बिल्कुल। पतन में इतना नुकसान से यहाँ पर इतना नहीं है जी, लेकिन बाहरकैफ मैं यहाँ पर आपको ये कहने आया हूँ कि इस मुसीबत के वक्त हम आपके साथ हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह जो एक इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, JUI का इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ साहब, हमारे नुमाइंदे अमीर मुकाम और दूसरी साथी पार्टियां हैं, सब मिलकर हम यहाँ पर आपसे इज़हार अफसोस करने आए और आपको ये यकीन दिलाने आए कि इस मुसीबत के वक्त हम आपके साथ खड़े हैं और जब तक आप अपने घरों में बहाल नहीं हो जाते, हम इंशाअल्लाह दिन रात आपके साथ रहेंगे। सूबाई हुकूमत NDMA जो वफाकी इदारा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, PDMA जो सूबे का इदारा है, सूबाई इंतजामिया के साथ कर इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। आज मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे हाल जान आपसे। दूसरी बात यह है कि इस सैलाब में चाहे वो दरिया के जरिए नुकसान हुआ है, चाहे वो बारिशी पानी के जरिए हुआ है, जो भी है, हर घर को हम
25,000 रुपया फी घर उनको हम मुआवजा दे रहे हैं। जो लोग जिनके घर वाले अल्लाह को प्यारे हो गए उनको वफाकी हुकूमत 10 लाख रुपया दे रही है उनके घर वालों को। ये 10 लाख रुपया मुआवजा जो दुख उनके घर वालों को है वो तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आपने दुनिया में रहना है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि वसाइल चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी को फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके माल मवेशी मर गए हैं, सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, बलूचिस्तान में बड़ी तबाही हुई है, आपके केपी में, कोहिस्तानी इलाके में, और फिर वहाँ पे पंजाब के जनूबी इलाकों में हुई है, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ जहाँ ये नुकसान हुआ है हम इंशाअल्लाह पूरी तरह जो वसाइल हैं आपकी खिदमत में हम मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। और खुराक टेंट हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से खैमे आ रहे हैं, अद्वियात आ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, बच्चों के लिए भी वहाँ से सामान आ रहा है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं दोस्त ममालिक के। और हमारे जो बरादर ममालिक हैं, बरादर ममालिक में हमारा सऊदी अरब है, हमारा यूएई है, कतर है, हमारा ईरान है, और दोस्त ममालिक में चीन है, ये सब हमारी मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने भी हमें इमदाद का कल ऐलान किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो जो ममालिक बरतानिया ने किया है और दूसरे ममालिक ने, अक़वाम मुत्तहिदा है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी रकम यानी सामान की शक्ल में जो ऐलान किया है वो है जो हमारे भाई मेरे दोस्त जो यूएई के सदर हैं, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने $50 मिलियन का सामान की शक्ल में इमदाद का उन्होंने ऐलान किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तुर्की के सदर हमें वो सामान भेज रहे हैं। अमेरिका ने कल $30 मिलियन का ऐलान किया है। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके तावन से और वफाक के जो दूसरे महकमे हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज की जो वजारत है और दूसरे सब ने मिलकर अब अक़वाम मुत्तहिदा ने कल जो हमारी फ्लैश अपील जारी की है और $160 मिलियन का उन्होंने किया है ऐलान। तो दूसरे भी इदारे करेंगे। बहरहाल चाहे बाहर से इमदाद आ रही है या पाकिस्तान के अपने वसाइल से, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमारा ये वादा है, अब आपको सबको हम सबको मिलकर फैसला करना है और इंशाअल्लाह कि जो हकदार है वो रह न जाए और ना हक को ये ना मिले वो बड़ी ज़्यादती और जुल्म और ना इंसाफ़ी हो। तो ये आप सबको मिलके, हम सबको मिलके ये जिम्मेदारी उठानी है इंशाअल्लाह। और आज मैं 10 अरब रुपए का मैंने ऐलान किया है केपी के लिए, और NDMA जो हमारा वफाकी इदारा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उनके साथ मिलकर सूबे की जो इंतज़ामिया, उनके साथ मिलकर हम ये करेंगे और शफाफ तरीके से ये 10 अरब रुपए ये इंशाअल्लाह, सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, जो भी हमने आपकी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी मुआवजा है, तो ये इंशाअल्लाह हम करेंगे। और जब तक आखिरी घर जो है, आखिरी फर्द अपने घरों में आबाद नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे और आपकी खिदमत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आप अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।
हम इस वक्त दौरे पटन पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की है और वो इस वक्त मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। दोपहर में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम यहाँ इज़हार अफसोस करने आए हैं। जब तक आप अपने घरों में नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर खानदान को हम 25,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। खुराक टेंट दोस्त ममालिक से आ रहा है, UAE, चीन, अमेरिका, कतर सब हमारी मदद कर रहे हैं। आज मैंने KPK के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान किया है और ये 10 अरब रुपए साफ और शफाफ तरीके से इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाके पटन का दौरे पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो इसका दौरा भी किया है और मुतासरीन से बात भी की है। मुतासरीन से बात में उनका कहना था कि दोपहर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मैंने देखा है और इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। खबर दें